اور کوئی یہ لیں سوال استاد ہے جی، تو کوئی جواب. پہلا مرضیہ ہے اویس. بریلویاں جی دیاں ٹوئیاں وڈ گئیاں اوئے. جی ویس صاحب، جی ویس صاحب فرمائیے. چلے نیچے اتارتے جائے، اگر نہیں بریلویاں بات دیاں کرنی ٹوئیاں وڈ گئیاں اوئے. نیچے اتار کے نئے کالر کو اٹھا لیں اگر نہیں انہوں نے بات کرنی. اچھا فی الحال تمام ایڈمنز میں آپریٹ کر رہا ہوں، تو پلیز آپ نہ اٹھائیں نہ اتاریں، میں آپریٹ کر رہا ہوں خود. ہاں باری باری اچھا ایک ایک جناب، بندے کو. لیں استاد جی، عامر علی صاحب آئے ہیں. عامر علی صاحب پہنچ جاؤ. چلو کوئی نہیں پہنچ رہے، میں دوسرا ساتھی چکنا جی کوئی. لو جی جنون صاحب آئے نہیں، جنون صاحب جی. جی جناب جنون صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. شکر اللہ کا جناب، شکر اللہ کا. اچھا، یہ کس مقصد کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے جی؟ جی یہ مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی کے عقائد اور نظریات کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا موقف جی یہ ہے کہ یہ دونوں جو مرزے ہیں نا، ان کا عقیدہ، نظریہ اور طریقہ واردات ایک ہے. مثلاً جی مثلاً کیا؟ مطلب کیسے؟ کچھ تھوڑی سمجھ آنی چاہیے نا. میرے بھائی یہ تو ہزاروں باتیں ہیں، وہ کیسے ہم یہاں پہ آپ کے اس ایک چھوٹے سے سوال میں بتا دیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. نہیں، میں نے تو مرزا صاحب کو جتنا بھی سنا ہے وہ تو قرآن سے، حدیث سے، دلائل سے باتیں کرتے ہیں. کبھی بالکل کوئی ایسی ٹھیک ویسی ہے، بات نہیں کی. قرآن حدیث سے تو مرزا سینئر غلام قادیانی بھی باتیں کرتا تھا. نہیں، یہ تو کوئی ایسی مناسب بات نہیں ہے کہ آپ کی اس دلیل کو جو ہے نا وہ سمجھا جائے کہ اچھا فلاں بھی کرتا تھا، فلاں بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے، میں کوئی پھر دلیل دے دوں. جی جی بالکل دینی چاہیے. اگر اس نے کوئی ایسی ویسی بات کی ہے، کوئی ایسی مطلب کوئی حدیث بیان کی ہے، یا کوئی ایسا کوئی مطلب کو فتویٰ دیا ہے جو مطلب عقائد سے ہٹ کے ہے، تو وہ آپ آپ کو ایک بالکل تو اس کو مائک بتانا تھوڑا چاہیے. سا اپنے منہ سے دور رکھ کے بات کریں گے نا تو آپ کی سانس کی جی آواز جی بھی آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. وہ نا شور آ رہا ہے بیچ میں، سانس کی بھی آواز آ رہی ہے. جی جی ایک ابھی بات، ٹھیک ہے. جی اب ٹھیک ہے. ایک جی بات کرتا ہوں میں، پہلے تو یہ بتا دیں آپ مرزا جونیئر جیلمی صاحب کے فالوور ہیں؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں. ہاں تو پھر تو مرزا سینئر صاحب کے فالوور آپ. نہیں، سینئر کو تو میں جانتا ہی نہیں. مرزا سینئر کون سا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو اب جب آپ بھائی ان جی دونوں سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ. نہیں، میرا ادھر کوئی مطلب بات سنے نا، میرا ادھر کوئی ایسی کوئی علمی بحث کرنے کا وہ نہیں ہے. میں نے جیسے یہ پکچر دیکھی میں نے وہ شاباش، بندہ آپ کا نا کوئی وہ بندہ آئے تعلق ہی کہ نہیں. جو ان دونوں میں سے کسی ایک کا فالوور ہے، وہ باقاعدہ دفاع کرے یہاں پہ بیٹھ کے. دیکھیں میں اب دلائل دوں، ایک بندہ مان ہی نہیں رہا، جب وہ انکار ہی کر رہا ہے میں مانتا ہی نہیں، تو وہ دفاع کیا کرے گا؟ تو وہ تو پھر ایسے ہی بات الجھ جائے گی نا، ایسے جی لڑائی جھگڑا طارق ہی بنے پٹھان گا صاحب، اور کچھ نہیں. جی یہ کون آئے ہیں جناب؟ طارق طارق پٹھان. طارق صاحب. جی طارق صاحب. طارق جی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ویسے سن رہا ہوں. آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے تو ہمیں آواز آنی ہے، ایسے تو آواز نہیں نہ آئے سن گی ہم رہے ہیں تک. تو پھر کال کیوں ڈال رہے ہیں یار؟ اگر آپ سن رہے ہیں تو نیچے بیٹھ کے سنیں. اچھا نئے کالر کو اٹھا لیں. دیکھیں یہ ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ بیٹھ کے مکالمہ کریے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ مکالمے کی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، تو آپ کال پہ نہ ہی آئیں تو بہتر ہے. جی وعلیکم السلام. جی جناب سجاد صاحب. جی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پکچر کیوں لگائی ہے، کس مقصد سے لگائی ہے؟ پکچر اس وجہ سے لگائی ہے کہ یہ چھوٹا مرزا جو ہے نا، وڈے مرزا غلام قادیانی کا پیروکار ہے،
इसके तमाम अकायद और कैसे नजरियात। आपके पास किसके प्रूफ है इसका भी? ये ये बड़े बड़ा कौन सबूत छोटा कौन है? ये कौन बड़े से ये सबूत। किस दिन इसने बात की है कि मैं उसको मानता हूँ, बड़े को मानता हूँ या छोटे को मानता हूँ? आप लड़ाई करने के लिए आए हैं कि बात करने के लिए आए हैं? नहीं भाई, अल्लाह माफ करे, मैं कोई लड़ाई करने के लिए नहीं है, आप मैं तो आपको बात प्रूफ सुन ही मांगता नहीं हूँ बस। रहे, बात काटे जा रहे हैं। जी बात बताएं, बंदा जी बताएं भाई। आप तो बात सुन ही नहीं रहे। आप तो बात जी जी, हाँ जी, बताएं जी, करें जी, करें जी, बताएं जी। बात करें, आराम से करें। एक बंदे की पहले बात जी सुन भाई, लेते मैंने हैं। बोला कि बताएं ना, मैं चले आपको नीचे सुन रहा बैठ हूँ। के आप सुने, फिर बताते हैं हम। नहीं, मुझे पहले ये बताया ना, ये प्रूफ देना इसका। देते हैं आपको प्रूफ देते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। मुकालमा करें आप। देखें, आने वाला वो बंदा होना चाहिए कि जो आन करे इस चीज को कि जी हाँ, मैं मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोअर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, या मिर्जा बिल्कुल। सीनियर गुलाम कादियानी का फॉलोअर हूं, मैं मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का स्टूडेंट हूं, मैं इन पर उठाए गए इतराजात के जवाबात दूंगा, मेरे पास इतनी ताकत, इतना इल्म, इतना फहम है कि मैं दिफा कर सकता हूं, तो ठीक है, हम बात करते हैं। जी मेरे भाई शान जट साहब आए। अली शान जट साहब तशरीफ लाए। जी फरमाएं जनाब। जी अली शान जट साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, की हाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। जी फरमाएं। जी भाईजान, मैं स्टूडेंट मिर्जा साहब दा, मेरे तो पूछो जो पूछना है। कौन से मिर्जा साहब? छोटे मिर्जा साहब, बड़े मिर्जा साहब? नहीं नहीं जी, ਵੱਡੇ ਤੇ ਹਿਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੇ। अच्छा जी, छोटे मिर्जा साहब के आप फॉलोअर हैं? क्योंकि मेरी गल पता सुनो, पता की वजह की है? हेलो, एक तो उर्दू में बात सुन सकते करिए, हो मैनू? उर्दू में बात करें ताकि रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग सुनेंगे, देखने सुनने वाले, उनको फिर बात समझ नहीं आती, कई लोग पंजाबी नहीं समझते। जी जी तो भाईजान, उर्दू में बात मेरी करें। बात सुने। पता इस बंदे को हम क्यों प्यार करते हैं? ये बंदा छोड़कर अगर आप भी हमें कुरान और हदीस की बात बताएंगे ना, तो मैं आपकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करूंगा जितनी कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की करता हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा फिल्में सुनाएगा कि बाबू ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, जो बिल्कुल कुरान हदीस में मिलते ही नहीं, तो फिर हम उसकी बात तो नहीं ना मानेंगे। अच्छा, आपने बात कर लीजिए, अब मैं बात करूं। जी जी प्लीज़ आप करें। अच्छा, तरीका कार ये है कि बात आपने पहले सुन लेनी है। जब तक आपको कहा ना जाए कि आप अब जवाब दें, तो उस वक्त तक आपने बोलना नहीं। जी जी ये बीच ओके में ओके, जीजी प्लीज जीजी भी नहीं करना ना, यही तो मसला है। हाँ, आपकी बात हमने सुनी है, बीच में जीजी जीजी तो नहीं किया। आपने नोट किया इस चीज को कि हमने कोई जीजी 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 किया है कोई? ये तरीका ही नहीं है, गुफ्तगू का अंदाज ही नहीं है ये। पहले तो आप अंदाजे गुफ्तगू सीख लें। दावे आप लोगों के ये हैं कि हम मिर्जा जूनियर जेलमी के स्टूडेंट हैं, उसने आप लोगों को गुफ्तगू का अंदाज ही नहीं बताया अभी तक। एक बंदे की गुफ्तगू जो है ना, उसकी शख्सियत का आईनादार होती है। आपको पता ही कख नहीं है कि भाई हमने बात कैसे करनी है। अच्छा, अब ये है कि आप मुझे छोटे छोटे सवालात कर लेता हूं ताकि मुझे अगली बात करने में आसानी रहे। क्या आप मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोअर हैं कि नहीं हैं? जी बताएं आप। माइक ओपन करके बताइए, आप उसके फॉलोअर हैं कि नहीं हैं? हेलो भाई जी, माइक आपका म्यूट है। जी भाई, मैं कितनी बार आपको कह चुका कि मैं मिर्ज़ा जेल में जो है ना उसको फॉलो करता हूँ, उसको मानता हूँ। बस ठीक है, बस ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। ठीक है, माइक म्यूट कर ले, अब खुद ही कर लेना, वो हमारा कोई एडमिन करेगा, आप के नफ्स के ऊपर गिरा गुजरेगा। माइक म्यूट करे ना। ओ भाई जी, थल्ले हुंदा जे माइक म्यूट दा बटन, सब तो थल्ले वेखो। हाँ जी, चलो
टिक टाक तैयार हो जाते हैं, पता है कख नहीं उसका इस्तेमाल कैसे करना। अब मैं एक वीडियो चलाने लगा हूं और ये सुनिएगा और इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाता है। ठीक है जी, ये आपने सुन लिया। मिर्जा जूनियर जेलमी कह रहा है कि अल्लाह पाक ने ये ऑफर करवाई है कि मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा, और जो उसकी क्वालिटीज हैं यानी सिफात हैं, सिफात ज़ातिया, वो भी मैं तुम्हें अता कर दूंगा। और खुदा की जो सिफात हैं उसने बताई हैं कि वो कुन फयकून है, वो कुन कहता है तो फयकून वो काम हो जाता है। ठीक है, तो वो भी अल्लाह पाक अता कर दे। सेम यही अकीदा नजरिया मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का था, और असल में ये सबसे पहले ये मिर्जा कादियानी ने ये अकीदा बयान किया था, और उसको फॉलो करते हुए ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये अकीदा बयान किया। अब इसके मैं दलाइल आपको दे देता हूँ। रूहानी खजाइन है, जिल्द 5 है, सफ़ा 564 है। मिर्जा कादियानी कहता है व रईतुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कनतु अन्ननी हुआ, मैंने अपने एक मनाम के अंदर अपने आप को ऐन अल्लाह बने देखा और मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूं, यानी मैं अल्लाह बन गया। इसी तरीके से एक और हवाला है, रूहानी खजाइन जिल्द 13 है, सफ़ा 103, किताबुल बरिया के अंदर मिर्जा कादियानी कहता है मैंने अपने आप को एक कशफ में खुद देखा कि मैं खुद खुदा हूं और यकीन किया कि मैं वही हूं। अब ये खुदा बनने का जो क्लेम है मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी कर रहा है। रही बात कुन फयकून की, तो इसका क्लेम भी मिर्जा कादियानी ने किया था। रूहानी खजाइन जिल्द 22 है, सफ़ा 714 के अंदर अल खातिमतुल इस्तिफ्ता उसका एक रिसाला है, उसके अंदर वो कहता है मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है कि ए मिर्जा कादियानी इन्नमा अमरू का इज़ा अरदता शैयन अन तक़ूल लहू कुन फयकून। ए मिर्ज़ा कादियानी जब भी तू किसी चीज का इरादा करे तो तू बस कुन कहा कर तो फयकून वो काम हो जाया करेगा। अब मुझे बताइए ये यही अकीदा मिर्ज़ा कादियानी का और यही अकीदा मिर्जा जूनियर जेलमी का, इनमें से सच्चा कौन झूठा कौन? जबकि ये कुन फयकून की सलाहियत तो फकत अल्लाह पाक की सलाहियत है, अल्लाह की सिफत है, और ये सिफत तो नबियों को भी अता नहीं हुई और नबियों को भी अता नहीं करेगा जन्नत के अंदर। कुरान पाक के अंदर जा बजा अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जैसे सूरा अल बकरा आयत 117 के अंदर अल्लाह फरमाता है फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। ठीक है, जब भी वो किसी काम का इरादा फरमाता है तो ये कहता है कि हो जा, तो वो फौरन हो जाती है। यही चीज अल्लाह ने सूरह आले इमरान आयत 47 के अंदर भी फरमाई है। यही चीज अल्लाह ने सूरह आले इमरान आयत 59 के अंदर भी इरशाद फरमाई है, और यही चीज सूरह अन-नहल आयत 40 के अंदर, सूरह मरियम आयत 35 के अंदर, सूरह यासीन आयत 82 के अंदर, सूरह गाफिर आयत 68 के अंदर अल्लाह ने अपने लिए इरशाद फरमाई है। सूरह यासीन आयत 82 में पढ़ के सुना देता हूं, फरमाता इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। ये सिफ्त तो सिर्फ अल्लाह की सिफ्त है, ना ही दुनिया में ना ही आखिरत में किसी के लिए नहीं है। ये सिफ्त ज़ातिया है, अल्लाह पाक की सिफ्त ज़ातिया हकीकी है। और मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये जो कहा है कि अल्लाह ने यह ऑफर करवाई है, ये अल्लाह ने कहां पे ऑफर करवाई है? अल्लाह की ऑफरें हमें मिलती हैं तुरात के अंदर, जबूर के अंदर, इंजील के अंदर, कुरान के अंदर, या हदीस कुदसी के अंदर, जो अल्लाह का फरमान होता है। अल्लाह की ऑफर तो और कहीं नहीं मिलती हमें, हमें वो रेफरेंस चाहिए कि कहां पे अल्लाह ने यह ऑफर करवाई है कि मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा, छोटा खुदा बना दूंगा। जबकि अल्लाह पाक तो इसकी नफी करता है। हम जो कलमा पढ़ते हैं, कलमे के अंदर इस चीज की नफी करते हैं, ला इलाहा
ویسے تو میں یہ مرزا صاحب کا کوئی شاگرد وغیرہ نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کو بڑی باتیں سکھا رہے ہیں جی کہ آپ کو بات نہیں کرنی آتی، ٹک ٹاک پہ آپ نئے آئے ہیں، پرانے آئے ہیں، تو یہ تو وہ، آپ کا تو اپنا انداز بیان نہیں اچھا، آپ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جی ہم نے کون سی میرا بھائی صرف جان یہ گالی سوال ہے، نکالی آپ ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں، بس آپ مجھے میوٹ کریں، بات اپنی بتائیں۔ میرے بھائی ہم نے کون سی گالی نکالی ہے؟ آپ کو کوئی گالی نکالی ہے بتا دیں۔ حسن بھائی میں نے سینڈ کر دی تصویر۔ جی میرے بھائی کوئی گالی نکالی ہم نے؟ ہیلو بھائی جان بولے تو صحیح نا، یا ہم نے یہ کہا ہو؟ یہ سن لیں ذرا کہ جب ہم کھڑا کر لیتے ہیں تو اب اس کو کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ ہاں جی کہاں چلے گی؟ آئے نا بات کریں آپ۔ میں یہاں موجود ہوں، ہر چیز انجینئرنگ ہوئے گی، استاد آپ انگلی محترم بھی وہ لگائے نا رپورٹ کر رہا تھا۔ ایسے اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا ایسے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ جب کھڑا ہوا ہے جناب پریشان ہے، کھلو کیوں گیا ہے، باہو اینو باہو، اے نہیں سر پہننا ہو، اے نہیں سر پہننا ہے، کھلو گی کہ نہیں شے ہے، تو میری آپ انگلی بھی لگائے نا۔ ٹھیک ہے نا، ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا ایسے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ جب کھڑا ہوا ہے جناب پریشان ہے، کھلو کیوں گیا ہے، باہو اینو باہو، اے نہیں سر پہننا ہو، اے نہیں سر پہننا ہے، کھلو گی کہ نہیں شے ہے۔ ہاں جی بھائی کوئی ہم نے ایسی بات کوئی کی ہو، انگلی لگا کے کھڑا کر لیا ہے تو اب تم بٹھانا چاہتے ہو تو ہم یہ بیٹھے گا ہی نہیں، اب کھڑا ہو گیا یہ، کوئی ایسی بات کی ہو کوئی گندی؟ وہ تصویر یہ نہیں لگائیں بھائی، تصویر وہی لگائیں جو پہلے لگی تھی، یہ نہیں اچھا تصویر استاد لگی۔ محترم میں آپ کو نا اوپر لے لوں، یہ توقیر بھائی کی جگہ پہ؟ نہیں تصویر وہی لگائیں، بڑی تصویر لگائیں، وہ اوپر نیچے کو چھوڑے، تصویر وہی لگاؤ، کوئی ایڈمن آپریٹ نہ کرے، میں آپریٹ کر رہا ہوں۔ تصویر وہی لگائیں جو تصویر پہلے بھیجو۔ لگی تھی، جو براڈ بند ہوئی ہے، جس تصویر پر براڈ بند ہوئی اسی کو ہی لگائیں گے دوبارہ۔ وعلیکم السلام۔ محمد عمیر کو بھی پارٹی کال وہیں پہ سے نہیں شروع اٹھانا، اس کا کرنی۔ نیٹ خراب ہے۔ تقیر بھائی وہ تصویر سینڈ کیجیے گا، بھائی گروپ میں ہے تصویر۔ بیک جانا بننا، پھر ادھر شو نہیں ہو رہی۔ اور جلدی جاؤ نا، میں منٹ لاؤ، لگاتا ہوں۔ تسی کی کرتے ہو پہ انی ٹھلی قوم ساڈے نال جڑی ہے۔ نہیں میں حسن مفتی بھائی صاحب انجی میں کہہ ٹھلے رہا ہوں نہیں میں ہم بیک کے آگے دیو ڈگنا نہ بے نہیں بھاگ۔ ٹکدی، منٹ لائی دا ہوندا ہے کم، جھٹ پٹ کر کے تو ادھر ماری دا سائڈ تے سوچتے ہو پہ وہندے ہو پہ کریے کہ نہ کریے۔ وہی کالر جو تھے جن کے ساتھ بات ہو رہی تھی منی خدا کے موضوع کے اوپر، جو کہہ رہے تھے میں مرزا جونیئر جیلمی کا اسٹوڈنٹ ہوں، فالوور ہوں، وہی اگر سن رہے ہیں تو واپس آئیں بھائی، جلدی آئیں، واپس آئیں، جلدی آئیں۔ ہاں جی کہاں پہ کہا اللہ نے، کہاں پہ آفر کروائی ہے اللہ نے، میں تجھے منی خدا بنا دوں گا، کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ، ہر خدا کی نفی کرتے ہیں ہم، کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی چھوٹا خدا بڑا خدا کوئی ہے ہی نہیں، ہر خدا کی نفی کر دیتی ہیں ہم۔ پھر آگے اس بات کرتے ہیں ہم الا اللہ، صرف ایک ہی اللہ ہے۔ جب ہم اس بات کرتے ہیں تو اس وقت تو ہم کوئی منی خدا کا، چھوٹے خدا کا اس بات تو نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ مشرک ہے مرزا جونیئر جیلمی، اور جو بھی اس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ مشرکین ہیں، مشرکین جہلم، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ ملحدانہ عقیدہ ہے۔ جی یہ محمد صاحب آئے ہیں، کوئی کون ہے جناب، بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا، اور طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ شکر اللہ کا، فرمائیں کہ کدھر آئے ہیں؟ نہیں میں تو بات کر رہا ہوں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کا انداز بیان یہ اچھا نہیں ہے، کیا مطلب کیا آپ لوگوں کو سکھا کیا رہے ہیں؟
ਉਹ ਯਾਰ ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਵੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੇਲੀ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਪੁੱਤਾ ਹੈ ਕੱਖ नहीं ਐਵੇਂ ਬਸ अंदाजे गुफ्तगू अंदाज। तो यार तुम हमारे अंदाजे गुफ्तगू के पीछे पड़े हो, वो तुम्हें मुशरक बना रहा है मिर्जा जूनियर जेल में। अल्लाह ने ऑफर करवाई है मिनी खुदा बना दो तो कौन फयकून की सलाहियत दे दूंगा, तुम हमारे अंदाजे गुफ्तगू को देख रहे हो। वो खुदा की तौहीन कर रहा है, उसका अंदाजे गुफ्तगू नहीं तुम्हें पता। पागल हो, बेवकूफ हो। ये दोबारा सुने वही वीडियो जिस पर ये ब्राड गिरी थी, दोबारा सुने। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं एक मिनी खुदा बना दूं, तो मैं एक मिनी खुदा बना दूं, तो मैं एक मिनी खुदा बना दूं, तो मैं एक मिनी खुदा बना दूं। जो क्वालिटीज गॉड के पास, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाता है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही होगा, जब वो इरादा करेगा वही चीज के सामने आ जाएगी। बिल्कुल। खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी है उसको मौत कभी नहीं आनी, तो अब जन्नत में जाके ना मौत नहीं आनी, तो लिहाजा वो ही सिफ्त जन्नतियों को मिल जाएगी। तो ये वाली सिफ्त तो फिर जहन्नमियों के पास भी है, मौत तो उनको भी नहीं आनी है। बेवकूफ इंसान। ये असल में हय्यू कयूम है ना, जो उसके मद्दे मुकाबल लेके आ रहे। हई अल्लाह की जो सिफ्त है, हई जिंदा, तो हई की सिफ्त तुम्हें पता है? बेवकूफ इंसान, जाहिल इंसान, वो क्या होती है? हई की सिफ्त ये है कि जो पैदा ना हुआ हो और जिसको मौत ना हो उसको कहते हैं हई, और वो अल्लाह की सिफ्त है कि जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, और जो मौत है या जिंदगी है ये खुद जो है ना वो उसकी मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। ये जिंदगी और मौत ये दोनों चीजें अल्लाह की मखलूक है। तुम इंसान की जिंदगी को या मखलूकात की जिंदगी को तुमने हई बना दी है, वो अल्लाह की सिफ्त तो नहीं है। ये अल्लाह जो जिंदा है वो कुछ और है। इंसान जो जिंदा है या जन्नत के अंदर जिंदा होगा या दोज़ख के अंदर जो जिंदा होगा, वो जिंदगी कुछ और है। जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे तो देखने में देखो, कलाम तो हम भी करते हैं, तो कलाम अल्लाह भी करता है, तो क्या ये दोनों का कलाम बराबर है? बड़ा बेवकूफ ही होगा वो शख्स जो ये कहे कि ये अल्लाह ने सिर्फ हमें अता की है क्योंकि वो भी कलाम करते हैं तो हम भी कलाम करते हैं। अब अल्लाह नाज़िर है, वो देखता है, तो इंसान भी देखता है, तो क्या ये सिफ्त उसके अंदर है? भाई वो सिफ्त तो इसकी कोई और है, हमारी सिफ्त कोई और है। उसकी सिफ्त हकीकी है, हमारी सिफ्त अताई है, हमारी सिफ्त मखलूक है, उसकी सिफ्त गैर मखलूक है। तो टोटली जो सिफात है उसकी, वो हकीकियां हैं, वो जातियां हैं, वो गैर मखलूक हैं। जबकि इंसान को या मखलूकात को जो सिफात मिलती हैं वो सिफात अताइयां हैं, गैर हकीकियां हैं, वो मखलूक हैं। और हमारी सिफात को फना है, जबकि अल्लाह पाक की सिफात को फना नहीं है। हमारी सिफात फानी है, अल्लाह की सिफात फानी नहीं है। किधर गए कॉलर यार? बुलाए किधर गए? किससे बंदा बात करे? पहले तो उस्ताद जी वो कॉलर उठाता हूँ, आपकी माशाल्लाह बात लंबी होती है, वो फिर रिपोर्ट मारते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, इसलिए मैंने उतार दिया था। हाँ ठीक है, जाने दे। ये अब इस वाली उस्ताद जी ब्रॉड पे कोई नहीं है कॉलर। हाँ, नहीं आएंगे भी नहीं। टोटल वो कासिम वाली ब्रॉड ही ठीक है, उसको कहता हूँ दोबारा लगाए। नहीं, वो मेरे हिसाब से उस पर ना वो पाबंदी लग गई होगी। अच्छा, उस्ताद मोहतरम एक सवाल है अगर इजाज़त हो। जी।
استاد محترم آج کل یہ اکثر یہ مرزا جونیئر کے فالوور آگے کہتے ہیں کہ جی اچھی بات جو ہے وہ کسی کی بھی لے لینی چاہیے اور بری بات چھوڑ دینی چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ اچھی بات لے لینی چاہیے، یہ اصل میں یہ نعرہ قادیانیوں کا نعرہ ہے، اچھی بات جہاں سے ملی وہ لے لو، بقایا کو چھوڑ دو۔ یہ مرزا قادیانی اور قادیانیوں کا یہ نعرہ ہے۔ یہ ذکر حبیب اٹھا کے دیکھ لیں اور صفحہ نمبر 227 ہے، انہوں نے باقاعدہ عنوان بند ہے، نصیحت سب کی مانو۔ اب مرزا قادیانی کا وہ فرمان لکھا ہوا ہے جی، فرمایا وائز کے قول کی طرف دیکھو، اس بات کا خیال نہ کرو کہ کہنے والا کون یا کیسا ہے، نکتہ چینی کرنے والے عموماً ناکام رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ اچھی بات یہاں سے مل لے وہ لے لو، بقایا کی چھوڑ دو۔ یہ تو قاعدہ کلیہ ہی نہیں ہے، یہ تو قادیانیوں کا بنایا ہوا قاعدہ کلیہ ہے۔ جی نعیم امان صاحب۔ جی نعیم امان صاحب۔ جی بولیں نعیم صاحب۔ نعیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے۔ ایک منٹ میں لگا لیتا ہوں۔ کون مر گیا ہے؟ السلام علیکم۔ ہلو، زور سے بولے تھوڑا سا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ شکر اللہ کا۔ باقی میرے بھائی صاحب ٹھیک ہیں؟ ہاں جی کدھر تشریف لیا ہے جی؟ کوئی گل بات دسو سانو، کوئی نمی سناؤ کوئی۔ سر تھوڑی گفتگو سنی روح خوش ہوئی ہے، تو سلام کرنے دل کیتا ہے۔ جی جی جزاک اللہ، بڑی مہربانی جی۔ اور کوئی علمی گفتگو سن رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے اساں بھی، اللہ پاک اساں بھی ہدایت۔ نعیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ استاد محترم قاسم کی براڈ شروع ہو گئی ہے دوبارہ۔ اچھا شروع ہو گئی ہے، چلے بھائی سارے دوست ادھر ہی پھر آ جائیں، ادھر ہی آ جائیں، واپس ادھر ہی ہے، بند کریں اس براڈ کو۔ دنیا والے کو بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے خود کہا قرآن پاک میں 27واں پارہ ہے، مجھے آیت نہیں آتی، میں اتنا پڑھا نہیں ہوں، تو کہا گیا کہ جاؤ اپنے خداؤں کی پوجا کرو۔ یہ کہاں لکھا ہے ویسے بتا سکتے ہیں بھائی؟ سر آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا، میں نے کہا نا کہ میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، تصدیق آپ کیجئے۔ اور نہیں وہ تو میں کر لوں گا، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں یہ تو بتا دینا آپ نے کہ خداؤں کا لفظ جی آپ کے وہ جو مفتی صاحب ہیں اگر وہ تشریف لائیں تو میرے لیے بہت ہی ناز کی بات ہوگی۔ جی آ رہے ہیں، ویٹ کیجیے گا۔ جی سر میں انشاءاللہ، جی سر میں اگر بکواس کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پہ قائل ہوں، میں نے تو بکواس کر دی، آپ کا حق ہے نا، آپ کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے ایمان مفصل میں، اللہ وبرکاتہ استاد محترم، ایمان مفصل میں آپ کو عطا کیا گیا ہے، اللہ پاک نے کہا کہ وَتَصْدِيقٌ بِالْكِتَابِ۔ بان صاحب ٹھہر جائیں، بان صاحب حوصلہ کریں، ٹھہر جائیں۔ یہ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں وہی تصویر بڑی رکھیں، وہی تصویر وہی بڑی۔ جی قاسم بھائی تصویر بڑی کر رہے ہیں پھر۔ ہاں جی سبحان صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ استاد صاحب میں نا ابھی دراصل آیا ہوں آپ کے آنے سے صرف 1 منٹ پہلے، تو مجھے ابھی تک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ ہاں یہ سبحان صاحب سے پوچھتے ہیں نا جی۔ سبحان صاحب مائک تو اوپن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا۔ مزاج اچھے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ۔ تھوڑی دیر پہلے پیارے بھائی جہاں بھی بیٹھے تھے، آپ کو تعارف دینا میں مناسب سمجھتا ہوں تاکہ سننے والوں کو بھی پتہ ہو۔ اچھا مختصر رکھیے گا، یہ کوئی یہ نہ ہو کہ پوری براڈ آپ کی تعارف کے اوپر ہی ہو جائے۔
मुख्तसर। सुभान साहब का लगता है इरादा नहीं है किसी और को कॉलर को उठा लें यार। कासिम भाई, वो ना अभी वो काशिफ भाई फैसला को उठा कर लें लें कि यार। भाई उन्होंने बोलना है कि नहीं, तो उतनी देर किसी और कॉलर को उठा लें। बहुत अच्छी फैसला बात करने में है उनको दिक्कत हो रही है कि बोलूं कि ना बोलूं। सर, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की। आपका लहजा बता रहा है कि आपका इल्म भी जहली है। थैंक यू सो मच। जी जी जी। तारुफ करवा दिया आपने? मैंने सिंपल ही आपको बता दिया है। अच्छा, तारुफ हो गया। अच्छा, अब तारुफ के बाद आप अगली बात करें, क्या करनी है? आपने थोड़ी देर पहले ब्रॉड जब बंद हुई थी वहाँ पे आपने कहा था, खुदा का नाम लिया था, तो गुफ्तगू हो रही थी। वो जो भाई आया था नीचे से, मैंने यहाँ पे एक बात की है मुझसे। मैं तो इल्म के लिए आया था कि मुझसे सवाल किसी ने किया तो मैंने ये सोचा कि मैं आपसे जवाब लूँगा, लेकिन वो क्या है ना कि आप इस चीज़ से शायद मरहूम हैं किसी की बात सुनने में। खैर कोई बात नहीं। सुभान साहब, माजरत के साथ आपसे सिर्फ जो सवाल किया फैजान भाई आपने नहीं बोलना यार, कोई नहीं बोले और किसी को ऑपरेट भी नहीं करना। ब्राड कौन ऑपरेट कर रहा है? मैं कर रहा हूँ उस्ताद मोहतरम, अब कोई और नहीं करेगा कलर भाई, नु किसी चुको, को नवे उतारे चलाएगा नहीं। नवे कलर नु चुको। चलो भाई, नेक्स्ट कॉलर कौन है भाई? आ जाओ भाई। ये हैं जनाब अली शान जट साहब। ये दोबारा आए हैं, लेकिन इनको मेरा ख्याल है अभी नीचे ही उठाते हैं। इन्होंने पहले उल्टा सीधा काम आए हैं जी। इट्स हाजी साहब आए जी। हाजी साहब आए जी। हाजी साहब, हाजी साहब। और हाजी साहब भाग गए जी। अगले कारी साहब को बुलाएं। लीजिए जनाब, ये आए हैं दहाड़ साहब आए हैं जी। कोई और एडमिन ऑपरेट ना करे, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। अच्छा दहाड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह। पहली बात तो भाई ये है कि आपका लहजा ही नहीं ठीक। आप अगले बंदे की बात सुनते ही नहीं, ठीक है, अपनी चलाने लग जाते हैं। अगर कोई बंदा बात कर रहा है आप उसकी सुनते ही नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आप नीचे फेंक देते हैं उसे। सबसे बड़ी जाहलों वाली बात तो ये है जो आपने पिक्चर लगाई हुई। चलो जी, आप भी नीचे उतरे हैं। हम वो कॉलर ले रहे हैं जो डिबेट करे, जो बात करे। डिबेट करो यार, हिम्मत तो बात करनी है। वाज़ो नसीहत ये वो भैड़ियां जनानियां मगर आके गल्लां करना है, चंगी गल ते नहीं। एहतिशाम साहब आए जी। एहतिशाम साहब, एहतिशाम साहब आए हैं, ये करेंगे बात जी। एहतिशाम साहब, कोई नहीं यानी कोई उतार रहा है या खुद ही चले गए हैं? ये भाई कहना पड़ेगा। अब खड़ा हो गया। मैं कह तो रहा हूँ हर चीज कि मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। भी लगाए ना ऐसे उठा। आसिफ भाई, मैं कह रहा हूँ मेरे दोनों हाथ पीछे हैं, आपके ऊपर है, मैं नहीं ऑपरेट कर रहा। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर कहना हो, ये नहीं सर कहना है, खलो गई ये नहीं क्या है, ये भी लगाए ना। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे उठ जाते, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना, ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर कहना। हाँ जी जी जनाब। वहाब साहब आए हैं, माइक ऑन करें अपना और बात करें। वालेकुम अस्सलाम जी। वहाब साहब माइक ऑन करें, जल्दी करें, नीचे लाइन लगी हुई जी। उस्ताद जी आ रही है जी। वहाब साहब लाइन लगी हुई नीचे, आखिरी दफा कह रहा हूँ। चलो नेक्स्ट खलो गया ना, खलो गया नहीं बहना है भाई ना, है नहीं। उंगली ला के खिला रहे हैं, खिला रहे अभी मिर्जा साहब ने, मिर्जा जूनियर जेलमी साहब ने। हाँ जी रहमानी यार, फैजान कैमरा ऑफ कर दे। रहमानी साहब आए, रहमानी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। सर आपने मेरे डालता हूँ जो आप लोगों की बात नहीं सुन रहे। बिल्कुल ठीक है, 2 लानते हो गई हैं, तीसरी ठीक है, 2 लानते हो गई, तीसरी फिर आप पे लानत है कि खबीस के बच्चे तुझे मुफ्ती किसने बना दिया। चौथी अगर तूने ब्रॉड लगाई तो लोगों की सुन तो सही।
चौथी सुभान भाई कितनी अच्छी बात कर रहे थे। चौथी भी कोई चौथी बात ये है कि सुभान भाई कितनी बात प्यारी कर रहे थे, आपके पास कोई जवाब था, आपने नीचे उतार दिया उनको। रहमानी साहब मैं ना उनको जानता हूँ और सुना है ना मैं उनको जानता हूँ, रहमानी ना मैं साहब आपको ये जानता हूँ। रहमानी साहब ठीक है, ये जो उंगली लगा के ये खड़ा हुआ है अब, तो ये बैठेगा कि नहीं? आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाहो इनू बाहो ये नहीं सर बहना हो, ये नहीं सर बहना है, खलो गई कि शह है। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाहो इनू बाहो ये नहीं सर बहना हो, ये नहीं सर बहना है, खलो गई। जी सारे ये उंगली लगा के खड़ा हो गया है, तो ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जी रहमानी साहब, जी रहमानी साहब फरमाएं जी। मैं ये फरमा रहा हूँ जी, सुभान को वापस लाओ, उसके साथ बात करें। रहमानी साहब ठीक ने है? उंगली लगा मैं के तुझे खड़ा देख हो रहा गया है, हूँ, उंगली मैं लगा के तुझे खड़ा हो देख गया रहा हूँ कि तू पहले कितना तो- बड़ा मुफ्ती है, तुझे बात करने की तमीज पहले नहीं तो है। ये भी बताइए कि हमारे ये जैसे सिर्फ लोग मिर्जा जूनियर जेल में जो है ना, ये तुम लोगों की ही वो खड़ा करता है या मौलवियों के भी खड़े कर देगा कि नहीं उंगली लगा के? कि किसी मुफ्ती का भी वो उंगली लगा के ऐसे खड़ा कर सकता है कि नहीं? बताइएगा थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें, इल्मी किताबी कोई रोशनी डालें। जी जी रहमानी साहब बताएंगे। मैं मिर्जा जेलमी के मुंह में पेशाब करता हूँ। सही है। नहीं वो तो पेशाब तो चलो आप करते ही हैं, उंगली लगा के ये माजरा क्या है? उंगली लगा के खड़ा वो अब्बू को म्यूट ना करें बार बार, या सुन ले या अपनी भैन पे ओए जान दो सुनाइए रहमानी साहब। अब ये गालियां देने पे आ गए हैं तो बदतमीज बंदे की जगह नहीं है यहाँ पे। काशी भाई ऊपर वाली सीट कवर कर लें, पीछे जो रिपोर्ट हुई है ऊपर वाली सीट किसी के पास, अपना कोई बात नहीं। अपना ये उस्ताद जी लास्ट टाइम जो आपसे बात कर रहे थे ना, वो ये दोबारा आए हैं, इन्हीं से ही शुरू करते हैं उस्ताद जी। ये आ गए। अच्छा ये वाले थे, अच्छा वो ठीक है। हाँ ये वो है जो एक जुगतबाज को पसंद करते हैं, उसकी फोटो लगाई। हाँ फॉलोवर ठीक। सज्जाद साहब जी, सज्जाद साहब जी, पहले आपने बात की थी कि आप किसको मानते हैं, बड़े को मानते हैं छोटे को मानते हैं। मैंने आपको बोला था कि कब उसने कहा कि वो बड़ा है या मैं बड़ा हूँ या मैं उसको मानता हूँ, ये बताएं। प्रूफ मांगा था आपसे पहले। नहीं वो आपसे बात हो रही थी तो पराठ हमारी गिर गई थी, तो आप कह रहे थे नहीं मुझसे बात नहीं हो रही थी आपसे, आपने डिस्कनेक्टेड कर दिया था, मुझे लीव कर दिया था, डिस्कनेक्टेड जानबूझ कर किया था, लाइव बाद में हुई थी। आप मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी को फॉलो करते हैं कि नहीं करते? जी मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। करते, बस बात खत्म हुई ऐसे। अच्छा ये है कि आप का इंतजार था मुझे जानी साहब, तो ये पूछना ये था, मिर्जा जूनियर जेलमी साहब फरमाते हैं कि मरज़इयों की माँ को जन्नत के अंदर 4 शोहर मिलेंगे, तो ये जरा पहले उनकी स्टेटमेंट एक मिनट सुन ले, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा माइक म्यूट करेंगे ना तो फिर बताना आसान रहेगा। आपकी आवाज़ आएगी तो फिर हम बता नहीं सकेंगे। भी आजाद कर जाती है, हमारे लिए कुछ नहीं। जी औरतों को ये कहें कि हाँ मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे, जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो महमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। जी सज्जाद साहब, तो जी भाई जब अल्लाह पाक ने मर्द के लिए हूरें रखी हैं तो औरत के लिए नहीं रख सकते? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त जी, बिल्कुल ठीक। तो आप मुतमईन है ना, ये मिर्जा साहब ने जो बात की है ठीक है? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल देख लें, दोबारा मैं पूछता हूँ, ये ना बाद में मुकर जाएं आप। ये जो बात की है इन्होंने ठीक की है? ये ठीक ही है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे आपका असली नाम क्या है मेरे भाई का? असली नाम छोड़ो ना भाई, ये लिखा हुआ ऊपर। नहीं ये तो एक शख्स को, एक कॉमेडियन को आप बदनाम करेंगे तो ये अच्छी बात तो नहीं है। सज्जाद यानी बहुत अच्छा कॉमेडियन है, तो उसको बदनाम करेंगे, आप लोगों को बदनाम करते हैं। अच्छा चलें मौजू पे आते हैं, कोई बात नहीं।
تو یہ ہے کہ فیک نام ہے جو آپ کا جو بھی ہے. تو بتائیں مجھے کہ آپ کی والدہ اگر جنت میں کہے گی مجھے 4 شوہر اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو کیا اس کو اللہ عطا کرے گا کہ نہیں؟ یہ دیکھیں نا، جب آپ کے والد کہیں گے اور پھر آپ کی والدہ کو بھی تو ملیں گے نا. آپ کے والد کہیں گے ہورے چاہیے. مائک میوٹ کر لیا کریں، اپنی بات کر کے مائک میوٹ کر لیا کریں. بات یہ ہے، ادھر دیکھیں، پہلی تو آپ یہ غلط فہمی دور کر لیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی میں تو مانتا ہی نہیں، ہمارا تو یہ دین ہے ہی نہیں، نہ میری ماں کا یہ دین ہے نہ ہی میرے آپ جب باپ اپنا کا. دین ہی نہیں مان رہے آپ کافر ہیں. بات تو کرنے دینا، بات تو کرنے دینا، غلط بات ہے بھئی. آپ جب آ ہی گئے ہو مرد میدان بن کے تو بات تو سنیں نا. مائک میوٹ کریں ذرا سجاد صاحب، فیک آئی ڈی جو ہے مائک میوٹ پہلے کریں، ایسے بات آگے نہیں بڑھنی. مائک پہلے میوٹ کریں پھر میں اگلی بات کروں. ہاں چلیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا دین نہیں ہے. آپ ہمیں نہیں الزام دے سکتے تمہارا باپ یا تمہاری ماں، نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ان عقیدوں کو، نظریوں کو. دین تو تمہارا ہے نا بھائی، یہ تمہارے باپے نے یہ چیز بیان کی ہے، میں نے تو نہیں کی. تو عورتیں بھی تو پھر تمہاری ہی ہوں گی نا، ہماری تو نہیں ہوں گی. تو اب مجھے بتائیں، میں رپیٹ کرتا ہوں، آپ کی والدہ جب جنت میں کہے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 4 شوہر دے دے، یہ 4 سے آپ زیادہ. پہلے یہ بتائیں کہ آپ مسلمان یار ہیں، مجھے بات ایک کرنے دیں، مسلمان ابھی کو بات بدنام کر رہے کمپلیٹ ہیں نہیں آپ. ہوتی یا بیچ میں ٹھیک ہے، آپ کو موقع مسلمان کو دیتا ہوں. کافر کے ساتھ ان کا مائک ملا میوٹ رہے کریں ہیں. یار، مائک میوٹ کریں. اب زبردستی کر کے مائک میوٹ کریں. ہمارے موڈیریٹر ہیں موجود؟ جی موجود ہے استاد جی. دوڑ ہی گئے. اب واپس آئیں، اس سوال کا جواب دیں. جو آپ کے بابے نے یہ بات کہی ہے کہ جنت کے اندر کوئی عورت، تو کوئی عورت سے مراد یقینی سی بات ہے یہ تمہارا دین تمہاری عورتوں کے اوپر یہ اپلائی ہوگا نا. تو مرزیوں کی عورتیں جب جنت میں مانگیں گی 4 شوہر یا 4 سے زیادہ تو اللہ ان کو عطا کرے گا. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ مرزیوں کا کال اٹھاؤ بھائی، اور کسی کی اگر انہوں نے نہیں آنا تو. یہ ہے غالباً علی شان صاحب. ہاں جی یہ ہے ٹھیک ہے علی شان صاحب وہ پہلے براڑ گر گئی تھی ہماری. چلو سر آپ کا شکریہ، آپ نے دوبارہ اٹینڈ کر لیا، پہلے تو آپ نے کی نہیں تھی. اچھا ذرا چلیں، یہ موضوع ایک چھڑا ہوا ہے، آپ کہہ رہے تھے میں اس کا فالوور ہوں تو میرا ڈائریکٹ ہی سوال آپ سے کر لیتا ہوں. علی شان جٹ صاحب، آپ کی والدہ اگر جنت میں 4 شوہر مانگے. بھائی میری پہلے آپ بات سنیں، میری آپ چھوٹی سی بات پہلے سن لو. جی بھائی یہ جو آپ جتنی بھی ویڈیو پیش کر رہے ہیں نا، یہ ایڈٹ شدہ ویڈیو ہے اور آپ کو اتنا پتہ ہی نہیں کہ یہ ویڈیو ایڈٹ ہے یا نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو پورا دکھاؤ نا. جو آپ نے مجھے پہلے دکھایا تو وہ ایٹ لیسٹ 1 سیکنڈ سے بھی لیس ویڈیو تھی اور ریکارڈنگ تھی جو آپ نے مجھے سنا دی. اور آپ مجھے، آپ کی طرح کے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو نا یعنی کہ بری اچھا تو یہ چھوٹے چھوٹے کلپ پیش کرنا صحیح نہیں ہوتا استاد جی. 1 سیکنڈ سے بھی یار، کم ایک کیسے منٹ چلا بولنے دیا تو آپ صحیح نے؟ نا، ان کو بولنے دیں. علی شاہ صاحب، یہ کیا چھوٹے چھوٹے کلپ پیش کرنا ٹھیک نہیں ہوتا؟ مائک اوپن کریں، بولیں تو صحیح نا. علی شاہ صاحب، علی شان شاہ کیا لکھا ہے؟ ہیلو، اتار دوں استاد جی؟ اتار دیں. انہوں نے وہی ان کی وجہ سے براڑ پہلے بھی گری تھی تو انہوں نے وہی لگتا ہے کام، رپورٹنگ والا کام ابھی بھی وہی کر رہے ہیں. نیکسٹ کالر آئے جی دبئی سے جناب. جی ڈیکس صاحب. ہاں جی بھائی جی، DXB. پر دفاع ہو. اوئے ہوئے یار، کوئی گل کرنے والا کوئی بندہ ہی کوئی نہیں لبتا. نہ ہی قادیانیاں چ کوئی بندہ وے، نہ ہی مرزیاں چ کوئی بندہ ہے. مرزا جونیئر جیلمی والے چ گل کرنے والا کوئی ہے نہیں، گالاں کڈن والے نے بس سارے. اچھا استاد محترم، نیکسٹ جو کسٹمر ہیں وہ انہوں نے دوبارہ کال لا لی ہے، چلیں ان کو لے لیتے ہیں دوبارہ. یہ آگے استاد جی. جی علی شان صاحب.
यार ये आप बार बार भाई डिस्कनेक्ट कर क्यों कर देते मुझे ये तो आप पहले बताओ ना। अगर आप बोलते नहीं है, आप चुप करके पहले भी बराड़ आपकी वजह से गिरी थी, रिपोर्टें मारते हैं आप। तो बोला करें ना, जब आपको कहा जाता है बोलते नहीं आप यार। मुझे आपसे क्या मैंने आपको रिपोर्ट करना, मुझे ये बताओ। हाँ जी, आप बताइए मुझे कि ये छोटे छोटे क्लिप जो पेश किए जाए तो ये बात ठीक नहीं होती। यार ये जो आपका बंदा है ना, जो ये हैंडल कर रहा है आपकी लाइव को, वो छोटे छोटे क्लिप जो पेश किए जाए वो बात ठीक नहीं होती यार। वो एडिट शुदा होते हैं, मुझे कोई एक भी उसके बस आप करें, मेरी तस्वीर बड़ी करें, मेरी तस्वीर बड़ी करें भाई। इस चीज का हल मैं अभी पेश करता हूं। यह भी सरेदस्त एक वीडियो यूट्यूब की मेरे सामने ओपन है, मिर्जा जूनियर जेलमी के चैनल की वीडियो है। और ये वीडियो है गोल्ड वाली। ये देखिए, अब ये क्लिप सुनिएगा जरा, गोल्ड वाले बाबे की स्टोरी सुनिए जरा। उनकी जुबान से तब बदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारे सोने का हो गए। अब ये देखे, ये क्लिप कितनी देर का, 19 सेकंड का क्लिप भाई, 19 सेकंड का क्लिप। अगला क्लिप भी अब सुनिएगा, अब 19 सेकंड से लेके आगे। तू नीचे देखा तो जमीन सोने की, जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया, क्यों नहीं मिट्टी दिया टीमा प्लांट है। और कहता कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना। ये ले बस 19 सेकंड से लेके 41 सेकंड तक कितने बनते हैं? तकरीबन 20 सेकंड। अगला क्लिप 20 सेकंड का है। और हमने जो तुम्हें अभी वीडियो सुनाई ये तो 1 मिनट और 6 सेकंड की वीडियो है। 1 मिनट 6 सेकंड का क्लिप है। हाँ बताएं, जवाब दें भाई। उसके अकाउंट से मुझे दिखाओ ना, ये फेक होते हैं लोग एडिट करके। पहले ये फेक, ये इसका सबूत दिखाएं। ये जो थे इसका सबूत दें ये सबूत। ये कहां से लिया गया है और इसकी पूरी बात क्यों नहीं पेश की गई? बताएं बताएं यार, मुझे उसके अकाउंट से वीडियो दिखाओ ना कोई। ये अकाउंट है, सेकंड का क्लिप क्यों काटा गया? किसने उतारा इनको? ये इनको ले वापस ले। ये छोटे छोटे क्लिप वाले जो कर रहा हूँ, कोई साथी बीच में ना पंगा करे। हाँ। मैं सबको उतार रहा हूँ, काशिफ भाई सबको उतार रहा हूँ मैं। ये तस्वीर वो वाली बड़ी करें भाई, वो ही बड़ी करें, उनको वापस ले। ये क्लिप वाला रोला आज खत्म तो करें जरा, इनसे जवाब लेना है। कासिम ब्लॉक कर दिया है काशिफ भाई, मैंने नहीं कुछ भी किया। नहीं कासिम तू गल करनी है, तू डड है जरा थोड़ा जा एक गल कर। ऐसे क्लिप का इन्हां कोल पहले जवाब लेना, जेड़ा हुंदा ही ना क्लिप दा जवाब लेना। और कोई ये बताओ कासिम, आपने उतारा इसको नीचे? भाई मैंने हाथ में लगाया मोबाइल को। ड्राइविंग कर रहे थे, चोरी पकड़ी गई है ना, चोरी पकड़ी गई है। क्लिप वाली खुद दौड़े हैं। अच्छा। हाँ, चोरी पकड़ी गई है ना, अब जवाब को नहीं है। क्लिप का इनसे जवाब पहले ले जरा, और कोई बात नहीं। जी ब्राउन साहब बोले। वालेकुम अस्सलाम जी। ब्राउन भाई, आप मिर्जा जी के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं किसी का स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं किसी के फेवर में हूँ, ना किसी के अगेंस्ट हूँ। जाने थे जी ब्रो भाई, बहुत मेहरबानी। अगले कलर को जो उसका स्टूडेंट है, फॉलोअर है, वो आए बस, और कोई ना आए। काशिफ भाई लॉस हुए। जी आए हैं जी मुर्शद साहब।
नहीं, गालियों की इजाजत नहीं है, लानत भेज सकते हैं आप। गालियों की इजाजत नहीं है, लानत भेज सकते हैं। यार कौन लांदा पिया? मैं लाया वे यार, तोड़ के रखो की कर दियो पे यार। सिर्फ मिर्जा जूनियर जेल में दफा मारा और कोई नहीं, दूजी कोई गल ही नहीं सुनी, थल्ले चुक के मारो। थल्ले है ही कोई नहीं उन कॉलर नहीं है तो फिर अपनी गल तोड़ के रख कासम। है वे एक बंदा ये चुप नहीं रहीदा हुंदा, गल तोड़ के रखी दी। मैं माइक म्यूट कीता है। और ये पप्पू मलक है, इसको उस्ताद मुद्रा ने मना किया हुआ। चल ले ले उन जरा, ये पप्पू मलक है। नहीं रहने दे फिर लांत पाओ जी जनाब। तो अस्सलाम वालेकुम शादी मैं स्टूडेंट हूं मिर्जा साहब। कुत्ते ते लानत पाओ दे दे और तू निकल आउट हो, तू स्टूडेंट आइंदे कभी सा नहीं ले। वो दोबारा आए जो पहले कह रहे थे कि आप बात नहीं सुनते। वो जरा चलो करो गाले करो। प्लीज टैप भी करें, ब्रॉड ऊपर जा रही है, प्लीज टैप जो भाई फारेंगे करते रहें। सुभान भाई आप अगर आराम से तमीज से बात करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे सिर्फ मशवरे देने हैं ना तो नीचे बैठ के आप सुने फिर चुप करके। है को बात करने वाली? मैंने कोई मशवरा नहीं, मेरा तो वो सवाल था, मैं लेकर आया हूँ। सवाल करें, जल्दी करें, जल्दी सवाल पर्टिनेंट सवाल करें। जी सुभान साहब बोलिए। सवाल मेरा ये था, आप पे बात सुभान साहब बोलिए। सवाल सुन लें, अगर मुस्बत समझते हैं ना सुन ले। चलो शाबाश, निकल जाओ। हमारे पास स्लो बंदे की तो जगह ही नहीं है ना। बात करो, खुल के करो, सवाल सुन ले। तू जिस काम आया मैनू पता है सारा। थल्ले बैठ के ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਜੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਡਬਲ ਟੈਪ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਈ ਮੁੰਡਿਓ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀ ਡਬਲ ਟੈਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਖਿੱਚੋ ਡਬਲ ਟੈਪ ਨੂੰ। ਡਬਲ ਟੈਪ ਚੱਲੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਟੈਪ ਤੁਹਾਡੀ, 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਓਏ ਕਾਸਮ ਗੱਲ ਟੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। देखें जी मिर्जा इंजीनियर के स्टूडेंट कितने बड़े कज़ाब और दज्जाल है मिर्जा इंजीनियर के जैसे कि जी आप क्लिप लगाते हैं जी। यार मिर्जा इंजीनियर आज तो अपनी वीडियो में 2100 लगाया क्लिप खुद, और कितने सेकंड का, 5 सेकंड का, 15 सेकंड का, 8 सेकंड का, 9 सेकंड का। आपको पता है, आप हमें सुनते रहते हैं, हमारे भाई हमें देखते रहते हैं जनाब। हम यहाँ पे मिनिमम 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट का लगाते हैं क्लिप। और ये मिर्जा जी के इतने बेखुदा स्टूडेंट है, उन पे भी इनको इतराज होता है। वो भाई पहले अपना पापा दे देखो, वो की लग्या करन इंजीनियर छोकरा की लग्या करन, वो दे देखो पहले जाके स्टडी करें और देखें कि कुरान और सुन्नत के अंदर क्या जरा। तो मेरा भाई अगर कोई मिर्जा साहब का स्टूडेंट नीचे है, ऊपर आए, बात करे। अच्छा, आप लोगों का एक और मसला है, मिर्जा इंजीनियर का हम कोई भी क्लिप लगाते हैं, क्योंकि मिर्जा इंजीनियर की ज्यादातर जो उसने आपको सिखाया वो वल्गर चीजें होती हैं, और वल्गर चीजें जब यार वल्गर तो याद आया ए नाल सुनो भी नाले वल्गर थोड़ी जी सुनो। मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है जनाब। ओए मरज़इयो रल के पवो, ए मरज़इयो जिन्ने जिन्ने अपनी बाजी नू 10 साल की उम्र दे विच सेक्स सिखाया है ते जल्दी जल्दी आओ भाई, जल्दी नेड़े लगो भाई, नेड़े लगो। हाँ जल्दी जल्दी।
बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की, डबल टैप खिंच दियो भाई, डबल टैप खिंच दियो सारे, कोई बंदा भी चुप करके नहीं बोलेगा। एजुकेशन नहीं होनी चाहिए सर। इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स, उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। सारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से। इंजीनियर अपनी कुड़ी दे जोधे बारे हुन दसन लगा जे ओदे अंडरवेयर दा साइज दसन लगा जे भाई, तो जो ना सुनिया जे इंजीनियर मिर्जा अपनी बेटी रज्जो के अंडरवेयर का साइज बताते हुए। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती है, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सोचना। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी दिन आए। मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक नशिस्त रिकॉर्ड कराऊं, ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं, खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। ये वाली एजुकेशन जरूर दे दी जाए। यानी मुझे अपनी बालिग होने की उम्र भी याद है, 26 मई 1992। वो है ओरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो मुआशरे के अंदर राइज है। भाइयों इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई ममानियत नहीं आई। चलो जी गल करो भाई। अस्सलाम जी। हाँ जी भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, आप मिर्जा जीनियर के स्टूडेंट हैं? जी जी। आपने ये क्या लगाया है? ये क्या लगाया हुआ है? आपको पता नहीं, सुना नहीं आपने? नहीं, ये आपने क्या लगाया है? आपने पता है कि एक मुसलमान को इस तरह करना क्या होता है, कितना बड़ा जुर्म है? एक मुसलमान को ऐसे कहना क्या होता है? ये जो वीडियो लगाई है मिर्जा इंजीनियर, जो अपनी बेटी के बारे में बता रहा है कि जनाब कि मेरी बेटी को जो है ना वो हैज आ गया, उसके बाद उसको मैंने पैड मंगा के दिए, तो इसके बारे में फरमाएं। ये लोगों को 25 लाख लोगों को बताना ये इस्लाम में है जायज? इसके बारे में बताएं। नहीं, उसने सही किया है। आपने इसको क्या नाम है, मुंह में क्या डाला है? मेरी बात सुनो। आपने अगर किसी इंसान को कुत्ता इस तरह बनाते हैं, मेरी बात सुनो, इंसान को कुत्ता बनाते हो कुरान साहब, आपका नाम क्या है? जरा मैं आपको बताऊं, नाम को छोड़ो साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो भी हो। और भाई कुरान तो नाम नहीं ना हो सकता आपका, नाम क्या है आपका? अब हम आपको कुरान कह के मुखातब करें? लखदी लानत है भाई। तेरे नाम बताएं क्या है आपका? कुत्ती के बच्चे। कुत्ती का बच्चा नाम है। ठीक है, सही नाम बताया आपने, कुत्ती के बच्चे। बड़ा प्यारा है आपका नाम यार। नहीं, बड़ा प्यारा नाम है जी, कुत्ती का बच्चा। और कुत्ती का बच्चा किधर चला गया भाई? वो आ जाओ कुत्ती के बच्चे, आ जा ऊपर आ जा। बहुत अच्छा नाम बताया है। तो ये कुरान क्यों? ये मुल्हित है असल में। कुत्ती का बच्चा नाम है, ठीक है, कुत्ती के बच्चे। बहुत प्यारा नाम बताया, कुत्ती के बच्चे जी। कुत्ती का बच्चा कुत्ती के बच्चे दौड़ा क्यों है? हाँ, कुत्ती के बच्चे तू ये बता। मैं नहीं उतरा हूँ। कुत्ती के बच्चे, मैं नहीं उतरा हूँ। म्यूट नहीं लगाना। 10 साल की बात, म्यूट नहीं लगाना। और फौरी तौर पे सेक्स सिखाया था कि नहीं? फौरी तौर पे सेक्स सिखाना था। मिर्जा जूनियर जेल में तेरा बाबा कहता है कि जब मर्जियों की बाजी 10 साल की हो जाए, उसको फौरी तौर पे सेक्स सिखाओ, नहीं तो मौलवियों ने सिखा देना। हाँ, सिखाया सही कि नहीं अपनी बाजी नु? कुत्ती के बच्चे, भौंकना हो कुत्ती के बच्चे। कुत्ते का काम भौंकना होता है। कुत्ती के बच्चे यार, कोई साडे मुंडियां दे विच कोई भी नहीं है। चल कुत्ती का बच्चे बकवास कर, बोल को नहीं रहा। बच्चे बोल।
ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੀਆਂ ਜ਼ੈਦ ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਰਮ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਤਕੀਰ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਢਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਯਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ टाइम नहीं है कुत्ती का बच्चा है यार कुत्ती दे बच्चे नहीं वो सुन नाम सुनाओ ये नाम है कंजर के बच्चे नाम रखे हैं अपने ये मिर्जा इंजीनियर का जनाब नाम बता रहे हैं अपनी बहनों के नाम पे तुम लोगों ने अपने नाम रखे हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है तेरी बहनों का कसम आईडी के ऊपर क्या नाम कैसे कर रहे हो नाम रखा हुआ है कुरान तेरी ज़बान चेक करो तेरी माँ की लान ओए कंजर ने तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बात सुनो एक चलो इधर तुमने डीपी कौन सी लगाई है तुमने डीपी कौन सी लगाई है डीपी तुम्हारे तुम पापा कुत्ती की के लगी बच्चे है हो ना ये तुम्हारा अब्बू है पापा की डीपी देख के तकलीफ हो रही है बोलो ना प्यारे पापा नहीं लगा म्यूट नहीं कंजर के बच्चे यार किसी और पाकिस्तान को बदनाम करते हो। कैमरा ऑन कर नीचे बड़े कैमरा ऑन कर बस बाकी बातें छोड़ कैमरा ऑन कर जल्दी कर कैमरा दिखा जरा तू है कौन तुम भी कैमरा ऑन ये देखो अपना नाम इसने लिखा हुआ है कुरान मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और साथ ये देखें इसकी जबान चेक करें जरा जबान चेक करें म्यूट में कैमरा खोलूंगा म्यूट ना लगाओ मैं कैमरा खोलूंगा एथीइस्ट है ये जो कि तुम म्यूट क्यों लगाते हो इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तुम यही मैंने कहा था जब वक्त आता है तो ये लोग अपना ताल्लुक ये मुल्हिदीन अपना ताल्लुक जो है वो जोड़ लेते हैं मिर्जा जूनियर जेलमी से हैं ये मुल्हिदीन इस्लाम मुखालिफ लोग होते हैं ये लोग। अब वो देखे ना ये सब कुछ आप लोगों के सामने। जी एम खान साहब हेलो एम खान साहब और बोलो ना जनाब कॉल तेज पाई सी जिमें एम खान ऑफिशियल आखिरी चांस बोलो जी वो सेंटर में घूम रहे हैं मुझे जो शो हो रहा है इधर क्या हाल है भाई ठीक हो चलो जी नेक्स्ट ठीक ठाक ओए वो आ गया था जी नेक्स्ट कॉल और यार एक मिनट खलो जा तू गल नू समझदा नहीं है तू विच बोलना शुरू कर देना है गल नू समझिया कर जज़ाकल्लाह। हाँ जी एम खान ऑफिशियल साहब आ जाओ मिर्जा जूनियर के जो फॉलोअर है ना जल्दी आ जाओ जरा ये हड्डी निकालो तफ्ते तवे पे खलोता है ना कोई कॉलर आओ जरा तत्ते कॉलर जल्दी आ जाओ एम खान साहब की बोले ने इधर ढिले बंदियां दा गुजारा को नहीं है भाई लेना साडियां च ना होना च किसे पासे गुजारा नहीं होना दा जी खान साहब। हाँ ये तस्वीर हटाओ ना ये बहुत अच्छी बात नहीं है ना हटाओ ना हटाते है बड़ा हटाता है ये अच्छी बात नहीं है तेरे बाबी की यार देखो ऐसी बात नहीं करो रंडी की देखो बात करनी है सही तरीके से करो ये बंदा भी अब क्या है एथीइस्ट है ना ये ड्रामा होता है इनका। अब देखे वो खान साहब बड़े शरीफ आदमी हैं इमरान खान साहब उनको बदनाम करने के लिए ये लोग तस्वीर लगाई है और नाम उसका लिखा हुआ है कि इमरान खान ऑफिशियल है सिर्फ बदनाम करने के लिए ड्रामेबाजी नैती है दैरियों का यही ड्रामा होता है। अच्छा उस्ताद जी जो नेक्स्ट कॉलर आ रहा है मोड़ते हैं कभी अपना ताल्लुक किसी सियासी ग्रोह के साथ कायम करते हैं या किसी मजहबी ग्रोह के साथ ताल्लुक कायम करेंगे ताकि बदनाम किया जाए इन लोगों जी राय साहब। अच्छा ये अगर ये बैक पे गए तो इनको उतार दे क्योंकि इन्होंने पहले मुझे फॉलो किया अब रिपोर्ट मारेंगे। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। कसम ठंडी नहीं करी दी जो कम तत्ता होवे। जी राय साहब। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप कैसी है आपकी सेहत तबीयत? मुफ्ती साहब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप सुनाएं आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुफ्ती साहब रात को सो के सुबह उठ के फ्रेश होके आ गए हैं दोबारा अपना मिर्जा जूनियर को वो करने के लिए। अगर मुफ्ती साहब के पास 1 मिनट का टाइम है तो मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा उनका। अच्छा मुफ्ती साहब ऐसे मसरूफ हैं लेकिन आप बताएं क्या कहना चाहते हैं सुन के जवाब दे देंगे वो बोले। वो बात मेरी मुफ्ती साहब सही है ना वो जब सुन रहे हैं ना मुफ्ती साहब सुन रहे हैं बात करें यार टाइम नहीं वेस्ट करें। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप ठीक हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र है खैरियत से सवाल करें आप। सवाल मुफ्ती साहब से है ना मुफ्ती साहब जवाब देंगे तो सवाल करेंगे तो जवाब देंगे ना यार दिमाग की दही नहीं करें बात करनी है तो करें नहीं तो मैं नीचे उतारने लगा आपको। सवाल करें वो जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाब देंगे आप।
साथी माइक म्यूट रखें, बाकी साथी माइक म्यूट रखें। सर इन्होंने माफी मांगनी है उस्ताद मोहतरम से। रायस अजहर भाई आप माइक म्यूट करेंगे? जी राजा साहब करें बात। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का जी। मुफ्ती साहब मैं आपको नहीं पहचानता था, कुछ चीजें कुछ बाद में मैंने देखी। माशाल्लाह अल्लाह पाक जो आप काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक आप उसकी बहुत बहुत जज़ा दे। तो अगर मेरे से कोई गलती कोताही हुई है मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ मुफ्ती साहब। तो बाकी इंशाल्लाह हम आपकी गलती किस चीज की, अभी मैं पहले दिन आज आपको देख रहा हूँ, तो कोई गलती करेंगे तो फिर माफी भी मांग लीजिएगा। बस वो आपके पास तो हजारों लोग आते हैं, दुनिया आती है, आपको तो नहीं याद लेकिन मुझे तो याद है, मैं कुछ गलत अल्फाज बोले थे। तो इंशाल्लाह हम भी आपके स्टूडेंट में से हैं, आपसे सीखेंगे, बैठेंगे जहाँ पे भी आप होते हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे, 2-3 चीजें मैंने आपकी देखी। आमिर नजीर भाई की ब्रॉड पे देखा मैंने आपको, उसके अलावा मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे मीर सलीम का आपने जो है ना उसको जरा उसकी औकात दिखाई, तो बड़ा मजा आया मुफ्ती साहब। ये फिर ऐसा है कि अगर आप हमारे स्टूडेंट बन गए हैं तो ये लोगो ये वाला ही लगा लें। जा रही है प्लीज खुदारा, मेरी उंगलियां थक गई हैं ना यार, 2 उंगलियां ना लगा। चले कोई बात नहीं जी। अगर मिर्जा इंजीनियर का मानने वाला, सुनने वाला, देखने वाला को मौजूद है, एक मैं चीज आपको सुनाना चाहता हूँ। वीडियो मजा आया फिर दसे आ जाए, कल तो ही ना। और ये अपना दिमाग खोल लो, मैं मिर्जा जूनियर बिल्कुल नहीं हूँ, अल्लाह के फजल से मैं मिर्जा सीनियर हूँ। जी मजा आया कि नहीं? और ये अपना दिमाग खोल लो, मैं मिर्जा जूनियर बिल्कुल नहीं हूँ, अल्लाह के फजल से मैं मिर्जा सीनियर हूँ। हाँ जी, इसलिए मुंह में हड्डी लगाई हुई है जनाब। मिर्जा सीनियर है, जूनियर नहीं है। जैसे इसके कायद है मिनी खुदा, ओरल सेक्स वगैरह आगे पीछे उस्ताद मोहतरम ने वीडियो लगा के सुनाई है जनाब आपको कि देखें जी ये कितना बड़ा कज़्ज़ाब है, बेहया बेशर्म इंसान है ये, हैं जी, कि जो मुसलमानों में घुसा हुआ है कि लोगों को कादियानी बना रहा है। यकीन माने सारे कायद वो हैं, सारे के सारे कायद, कोई ऐसा कायद नहीं है जनाब जो मैं देखा हो मुसलमाना में इसका हो ऐसा। ये बेशर्म इंसान है, बेहया इंसान है। अच्छा, मिर्जे का अकीदा क्या है जनाब? तौहीद के बाद सेक्स पसंद करता है। मुझे पता है कोई ऐसा मुसलमान है जनाब? एक चीज नोट करें जरा, मिर्जा जूनियर जेलमी को ये टाइटल देने वाला सोशल मीडिया की दुनिया में आजादी है। तकलीफ देके कहां तक पहुंची है? हैं सही निशाने पे लगा तीर है। ठीक है, करें बात। जी था जी। देखें जी, मिर्जा इंजीनियर साहब को सबसे पहले तो हम अपने उस्ताद मोहतरम को जो है ना वो सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने इस बंदे को, इस गलीज को, कज़ाब को, दज्जाल को आज से 12 साल पहले ही पहचान लिया था कि ये बंदा जो है ना ये जरूर करेगा गड़बड़। और इस बंदे को जैसे ही फेम मिला तो इसने वाकई वो काम किए हैं। इसने जनाब अपने जो है शरा बशरा बनाए, अपने जो है साबी भी बना चुका है और बोलता जी मुझ पे शरा जो है ना सदर होती है जनाब, मैं तो मबूस भी हुआ हूँ। और भाई ये भी नबूवत का दावा करेगा और आपके सामने करेगा। और जो उसको आज आप लोग मानते हो ना, यकीन मानो उस वक्त आप बैठ के रोगे कि यार हमने किस बंदे को मान लिया था। हमें मुसलमान बताते भी रहे हैं कि मत फॉलो करो यार, इसको मत फॉलो करो, लेकिन आप लोगों को हमारी अब बात नहीं समझ आती। इंशाल्लाह रोगे आप फ्यूचर में जाके कि जनाब हमने किस बंदे को फॉलो किया। ये चले मैं आपको एक वीडियो भी सुनाता हूँ मिर्जा के साथ। ये देखें जरा, ये देखें
کہ میرے آقا کی سنت مبارک ہے، یہ جو ہم بڑے بال رکھتے ہیں نا لوگ، جو ہمارے علماء کرام رکھتے ہیں، یہ میرے آقا کی سنت مبارک ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ کس طرح اس نے بکواس کی بونکا اس پہ، یہ سنیں ذرا. خیال رکھنا پڑتا ہے تو اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے. اس چھوٹے بال رکھے ہیں، یہ تو ابھی میں نے مطلب وہ چونکہ دین یہاں سارا گیٹ اپ میں گھسا ہے تو تب یہ میں نے اس رمضان میں یہ زلفیں رکھ لی ہیں. ہاں، اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے. اس کا ایک پورا ایک ظاہر ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے اتنا زیادہ بال رکھنا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان کام ہے؟ اس کو ریگولرلی آپ کو دھونا پڑتا ہے اور پھر اس کی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو یہ ایک مشکل کام ہے. یہ دیکھیں یار، جو میرے آقا کی یعنی پیاری پیاری سنتوں پہ بھی جناب یہ بندہ بونکتا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ ہمیں بتاتے. ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کا بھی مذاق اڑاتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. ہماری جمی عقائد کی کتب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. کسی نے بھی سنت کی تحقیر کی وہ کافر ہے. اب وہ دیکھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، بال شانوں تک رکھنا، کانوں کے لو کے برابر رکھنا، یاد کانوں تک رکھنا. تو اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک جانور پالا ہوا ہے. ہاں جی، اور بڑا مشکل ہے یہ. بھائی اتنا تجھے نفرت ہے تو تو نے رکھے کیوں یہ بال؟ نہ رکھتا. جی کریں بات. جی اس کی جو ہے نا وجہ ہے نا جناب، یہ مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ سن لیں، جو سن رہے ہیں بات ذرا غور سے سنیے گا میری. اس کی وجہ ہے کیونکہ اس نے شروع سے ہی اپنا جو کام شروع کیا ہوا ہے وہ صرف اور صرف جو اسلام کی شخصیات ہے، جو یعنی معتبر شخصیات ہے، ہمارے علماء کرام ہیں، جو اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں، ان کو متنازع بنانا. دیکھیں اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ ان کو متنازع بنا دیں گے نا تو جناب یہ جو ہمارا روایت کا کلچر ہے نا، کہ کیونکہ آج دیکھیں اگر پوری دنیا میں اگر ہمارا اسلام مستند ایک دین ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یعنی ہمارے پاس جو ہے نا روایات ہیں، ہم روایت کو لیتے ہیں سب سے پہلے، جو ہے اپنے آقا کی سنت کو لیتے ہیں سب سے پہلے. لیکن جب آپ ان لوگوں کو متنازع بنا دیں گے تو وہ جو یعنی جن بندوں سے ہم نے روایت لی ہے وہ بھی متنازع ہو جائے گی. جب وہ متنازع ہوگی تو پھر تو اسلام گیا نا ہمارے ہاتھ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے محترم یونس بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کاشف بھائی میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے گاؤں کے میرے استاد ہیں، ناظرہ میں نے ان سے ہی پڑھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبشر بھائی یہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں مجھے لگ رہا ہے ان میں سے، یہ سارے مزے لینے کے لیے آتے ہیں، گالیاں کھانے کے لیے آتے ہیں. کوئی کتی کا بچہ ہے تو کوئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ مرزا انجینئر نے جو اپنے اسٹوڈنٹس بنائے ہیں نا، وہ کوئی پڑھا لکھا کوئی باشعور بندہ اس کا اسٹوڈنٹ نہیں بنا. سارے وہ جو السلام علیکم یونس بھائی، نیچے نا ایک کالر آئے ہیں، میں آپ کو ڈراپ کر کے کالر لے رہا ہوں، آپ کو دوبارہ لے رہا ہوں. ٹھیک ہے کالر پہ لے لیں. استاد محترم یہ اوریجنلی آپ کا مریض ہے، یہ کالر جو میں لے رہا ہوں اب مسٹر سیدھا ان کی آئی ڈی ہے اور نام ان کا حمزہ ہے. السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے تمام احباب کو؟ السلام علیکم. کاشف بھائی ان کا شور ختم کروائیں پہلے. آپ بول پڑے تو آپ ہی کہہ دینا مجھے کہنے کی بجائے. ماڈریٹ پیچھے سے جو ساؤنڈ ہے بھائی ہمارے کاپی رائٹ آ جاتے ہیں، تو یا تو ساؤنڈ ہو تو بولے ہی نہیں تو ایسے کالر کو کوئی دوسری بات کیے بغیر نیچے اتار دیں. جب ہماری اپنی ویڈیو جو ہے نا اس پہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے.
हमजा म्यूजिक खत्म कर रहे हो पीछे से या बाद में आ जाना फिर? बोलो, माइक खोलो। हमजा नहीं, ओ पे जान दे। जी जी भाई। हमजा साहब आपके पीछे से ना गानों का शोर आ रहा है, अगर आप गाने बंद कर देते हैं तो दोबारा कॉल डाल दें। अच्छा यार साथी जरा ये सुने, ये मिर्जा जूनियर क्या कह रहा है, ये सुने जरा। आपके किसी बुजुर्ग ने आपके काम नहीं आना, खुद किताब सुन्नत को स्टडी करें और देखें कि कुरान और सुन्नत के अंदर क्या दलाइल मौजूद है खत्म नबूवत के हवाले से, अपनी इस्लाह करें। यहाँ भी जितने 60 70 80 के करीब लोग बैठे हैं, ये पैगाम लेके जाएं, किसी के साथ नफरत ना करें। आप ये तसव्वुर कर लें कि अगर मेरे माँ बाप कादियानी होते, मैं कादियानी होते, घर में पैदा हुआ होता। जी उस्ताद, एक तो ये वीडियो मुझे चाहिए और इसकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी चाहिए और उसकी टाइमिंग चाहिए। उस्ताद जी ये मैंने आप ही के चैनल से चलाई हुई है प्लेलिस्ट में। वो तो ठीक है यार भाई, मेरे पास वो डाटा डिलीट हो गया है, मैं वो डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ अब दोबारा। हैं ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਰੋਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਲਡਰ ਬਣੇ ਸਨ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਣੇ ਫੋਲਡਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਹਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਰਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਹਾਵਾਂ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਮੁxtਲਿਫ ਫੋਲਡਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਜੈਨੂਅਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਹਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੇ 53 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲਿੰਕ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆ ਲਿੰਕ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। सर हमसा हो तो सामने आए, ये बात कहना आसान है। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। लेकिन ਹੁਣ ਉਹ सब कुछ डिलीट हो गया है, मेरा मवाद खत्म हो गया है। वो बायोग्राफी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है उस्ताद जी? ओ भाई तेनू की दसा भाई, मेरी हार्ड डिस्क में होती है। अभी तो मेरे पास नहीं है ना उस्ताद जी, वो हमारे पास हार्ड डिस्कें इंशाल्लाह ताला इरादा है कोई 2-3 हार्ड डिस्कें लेने का, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक हार्ड डिस्क 40-40 हज़ार रुपए की आ रही है। तो अभी तो मेरा इरादा है इंशाल्लाह अज़्ज़वजल पक्के काम करने हैं और 2-3 लेके ना मुस्तकिल जो है ना उनको वो रखना है। तो बस दुआ करे अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे तो वो मुझे लेने की भी तौफीक अता फरमाए। अभी तो एक हार्ड डिस्क मेरे पास है तो उससे मैं गुजारा कर रहा हूँ, और वो भी समझ ले कि अभी तकरीबन फुल हो गई है, तकरीबन फुल हो गई है। तो ये इस तरह के काम मैं चाह रहा हूँ, तो इसलिए कहा है कि ये वीडियो मुझे इसकी पूरी बायोग्राफी चाहिए। एक तो ये क्लिप और दूसरा कि ये कहाँ से लिया गया, उसका लिंक मेरे तक पहुँचाएं और उसकी टाइमिंग भी। ये देखें ना, चलें मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैं ही समझ ले एक मोतारीज हूँ, मैंने इतराज कर दिया है। अब आपके पास वो नहीं है, कितनी खजालत होगी कि नहीं होगी। मोतरज अगर आपको पूछ ही ले कि ये कहां से ली गई तो क्या उसका जवाब क्या देंगे? ये है वो बातें, पूरी कंफर्मेशन के साथ बात करनी है। बात नहीं तो करनी ही नहीं है। बात चली कहां से, हुई कहां पे, वो सारा आपके पास होना चाहिए। ये बात एक अरसे की मैं समझाना चाह रहा हूं, तो फिर मजबूरन मुझे काशिफ ने पता नहीं पहले गौर नहीं किया, तो वो दोबारा फिर मुझे सारी चीजें समझानी पड़ रही।
उस्ताद जी मैंने पहले दिन से गौर किया हुआ, मुझे यूट्यूब के टाइम से पता है कि किसको ऐसे करना है, लेकिन मैं तो आपके चैनल से चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल कहाँ पड़ी हुई है। बात ये है कि मेरा पुत्र ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਲੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਦਾ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਖਲੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, हाँ कच्चे पैरी नहीं। कासिम मुझे लगता है तुम्हारी ब्रॉड फिर नीचे आ गई है, 12 पे चली गई है। हाँ हाँ ब्रॉड डिग गई है। अब अपनी बंदे बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल में इसको ऑफ कर देते हैं। अब ब्रॉड को ऑफ करके तो बल्कि अभी थोड़ा सा हाफ टाइम भी ले लें, तो कोई 2 घंटे बाद दोबारा शुरू करें। ठीक है ठीक हो गया उस्ताद। हाँ ठीक हो गया। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमा, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमा गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदियान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराज़ात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमा के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज़ कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद।